ಚೇಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಝಮನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿ. ಇದು ಲಯ ಬದ್ಧತೆಯ ಚೆಂಡು, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 8 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಗ ಕೊಂಚಾಡಿ. ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಹೋರಾಟವಿದು ದುರ್ಗ ಕೊಂಚಾಡಿ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೂಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ದಾಳಿಗಾರರು ಧನಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟು ಕಾಲಂಚಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶಗೊಂಡಂಥ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಬೈ ಎನ್ನುವ ನಿಶಾನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಮನಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಲಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತ ಝಮನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತನಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟು ವಿನೋದ್ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡುಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಗೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದಂಥ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಒಟ್ಟಾಗಿ 9 ಓಟಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ರೋಹಿತ್, ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಮನಿ, 2 ಓವರ್ಗಳು ಕೂಡ ಅದ್ಭುತ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಸ್ಪೆಲ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಂದೆ 9 ಓಟ, 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಸಂಪಾದನೆ. ಝಮನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ವಾಪಸಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 37 ಎನ್ನುವಂಥ ಸುಲಭದ ಗುರಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಓವರ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 7ರಂತೆ ರನ್ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಪಂದ್ಯದ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಝಮನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಸುಮಿತ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ. ಮೊದಲ 2 ಓವರನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಕೂಡ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ 2 ಓವರ್ಗಳು ದುರ್ಗ ಕೊಂಚಾಡಿ ತಂಡವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದಂಥ ಓವರ್. ಇನ್ನು ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಸುಮಿತ್ ಸುಮಿತ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಧರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರೆ ಬಾರಿ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಪತನಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಿನೋದ್ ಹಾಗೂ ರಫೀಕ್. ನಾನಚಿಮೆ ವಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಮಿತ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯ ದಾಂಡಿಗೆ ವಿನೋದ್ ಪೊಲಾಟ್ ಖ್ಯಾತನಾಮ ದಾಂಡಿಗೆ ಧರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳ ಪ್ರಯತ್ನ. ನೇರವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾಲಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವಿನೋದ್ ಪೊಲಾಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಝಮನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕಿಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿರಂತರ ವಿಕೆಟ್, 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಫೀಕ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ತಾಫ್, ಆ ಬಳಿಕ ರಶೀದ್, ಆ ಬಳಿಕ ವಿನೋದ್. 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಪತನದ ಬಳಿಕ ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅಜೀಂ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ತಂಡವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠತೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಂಥ ಆಟಗಾರ ಅಜೀಂ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯುತ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂಥ ಅಜೀಂ ಝಮನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡವನ್ನು ಆಧರಿಸುವರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಮಯ, ಸಂದರ್ಭ, ಎಸೆತಗಾರ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಹೊರಬೀಳಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲೋ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಗೇಮ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಕೂಡ ರೋಚಕ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯತಕ್ಕಂತಹ ಪಂದ್ಯವಿದು.
2 ಚೆಂಡುಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸುಮಿತ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿಗಾರ. 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಸಫಲತೆಯ ಬಳಿಕ ತೃತೀಯ ಬಾರಿ ಅಜೀಂ ಎದುರಿಸಿ ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದುರ್ಗ ಕೊಂಚಾಡಿ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೂಟದ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸುಮಿತ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಅಜೀಮ ಉಲ್ಟದ ನೇರ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರೆ ಈ ಬಾರಿ ಒಳ ತಿರುವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡುಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ ವೈಡ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಳ ತಿರುವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಜೀಂ ಓವರಿನ ಚತುರ್ಥನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಪ್ರತಮನ ಪಟ್ಟರು ಬಲವಾದ ಮನವಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಂದ ನಿರಾಕರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡುಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಆ ಮನವಿಯ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯ ಅಜೀಂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಟಗಾರ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಬೀತುಗೊಳಿಸುವುದೇ ಆದರೆ ಸುಮಿತ್ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಸ್ಪೆಲ್ ಇದು. ದುರ್ಗ ಕೊಂಚಾಡಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಂತೂ ಸಮರ್ಪಕ ರೀತಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಲಯಬದ್ಧತೆಯ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ಅಜೀಂ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಶೂನ್ಯದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒತ್ತಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಜೀಂ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಸುಮಿತ್. ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟದ ನೀರಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಡಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ದುರ್ಗ ಕೊಂಚಾಡಿ ಪರವಾಗಿ ಸುಮಿತ್ 6 ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದ್ರು, 1 ವಿಕೆಟ್ 1 ರನ್. ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯ ಸ್ಪೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದುರ್ಗ ಕೊಂಚಾಡಿ ತಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜೀವಂತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 37 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ 10 ಓಟಗಳು, 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 18 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ರೋಚಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. धन्यवाद श्रीमान रमेश बेलारे. तो निश्चित रूप से यहाँ पर फैंटास्टिक बॉलिंग परफॉर्मेंस कंटिन्यूइंग हियर फ्रॉम द बॉलर्स ऑफ दुर्गा कुंचाड़ी. और जो गेंदबाज इस वक्त इस्तेमाल किए गए रोहित, मणि और सुमित, जिन्होंने अपना किरदार बाखूबी अदा किया है. रोहित ने 3 रन सिर्फ प्रदान किए थे, 1 विकेट उन्होंने प्राप्त किया था. मणि ने सिर्फ 5 रन प्रदान किए, 1 विकेट उन्होंने प्राप्त किया. जबकि सुमित का ओवर अभी समाप्त हो चुका है, जिसमें सिर्फ 1 रन उन्होंने प्रदान किए और 1 विकेट उन्होंने प्राप्त किया. और इन तीनों गेंदबाजों की बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत इस वक्त एक बेहतर शुरुआत गेंदबाजी के जरिए कर चुका है दुर्गा कुंचाड़ी. और जमन बॉयज़ का लड़का के बल्लेबाज इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा काफ़ी संकष्टों का सामना यहाँ पर करते हुए अल्ताफ वॉलपाडी, रशीद बाबा और विनोद पोलार्ड, 3 प्रमुख बल्लेबाज इस वक्त पेविलियन वापस लौट चुके हैं. और निश्चित रूप से यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त परेशानियों के बादल इस वक्त उनके ऊपर साफ मंडराते हुए. और गुरुराज इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए 18 गेंदें बाकी, 27 रन चाहिए विजय के लिए. और इस बीच गुरुराज की ये गेंद, इस बार गेंद को रिवर्स शॉट खेलना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट थर्ड मैन पर. रन्स माफ कीजिए विकेट कीपर के हाथ में रन्स इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा और स्कोर रुक चुका है 10 रन 3 विकेट के नुकसान पर. चौथा ओवर इस वक्त प्रारंभ हो चुका है. एब्सोल्युटली डिफिकल्ट टाइम कंटिन्यूइंग हियर फॉर द बैट्समैन ऑफ जमन बॉयज़ का लड़का. गेंदबाज की ये गेंद, पहली गेंद रफीक के लिए, अगली गेंद इस वक्त उछालना चाहा, चूंकि इस वक्त और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. स्कोर रुक चुका है 10 रन 3 विकेट के नुकसान पर. 10 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th. और इनफैक्ट 2 बेहतर गेंदें इस ओवर में गेंदबाज फेंक चुके. अपनी ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार, रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, वाइड का इशारा अंपायर का, ऑप्शन से काफी बाहर की ओर गेंद फेंकी थी, थर्ड मैन पर मिसफील्ड. और इसका फायदा उठाकर बल्लेबाज ने दूसरा रन पूर्ण कर लिया. 2+1 3 रन्स, 3 वाइड्स एडेड टू द टोटल. और इन हालातों में वाइड फेंकना तोहफे के रूप में रन से देने के बराबर होगा. और शॉर्ट थर्ड मैन पर शशि जो फील्डर थे, जिन्होंने गेंद को ठीक तरह से फील्ड नहीं कर पाए, और इस भी 3 रन अतिरिक्त एक्स्ट्रास के रूप में उनके खाते में जुड़ता हुआ. 3 वाइड्स और 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर. 13 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट. और रफीक एक बार फिर से गेंदबाजी का सामना करने के लिए तैयार. ये गेंद इस बार रफ टपराती हुई, वाइड का इशारा एक बार फिर से. 14 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट. और धीरे धीरे अपने लय रिदम को खोते हुए इस वक्त गुर्राज 2 सही गेंदें फेंकने के बाद और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहा, बेहतरीन गेंदबाजी, गेंद सीधे इस वक्त उनके पैरों पर टकराई, रफीक के पैरों पर और वहीं पर गिर गए.
और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 14 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 14 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। और फिर से एक बार गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद बैकफुट पर गए, कट करना चाहा, बेहतरीन गेंदबाजी, लेग कटर गेंद थी, गेंद इस वक्त बाहर की ओर निकलती हुई अंतिम क्षण में गेंद को कट करना चाहा बैकफुट पर जाने के बाद, चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तो 4 बेहतर गेंदें गुरराज फेंक चुके, हालांकि 2 वाइड फेंकने के बावजूद इस ओवर में अगली गेंद, ये गेंद इस बार फिर से चूके, लेकिन वाइड का इशारा, ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद निकलती हुई। 1 रन मिलेगा, 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी मुश्किलों से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए बल्लेबाज जमन बॉयस कल्लड़ का के, और गेंदबाज गुरराज दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद रफीक के लिए उछालना चाहा, विकेट कीपर के सिर के ऊपर से गेंद निकले। इस वक्त थर्ड मैन की दिशा में शशि गेंद का पीछा करते हुए 1 रन मात्र मिलेगा। डायरेक्ट इस वक्त लग चुका है, लेकिन नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज रफीक 4-5 कदम आगे निकल चुके थे नॉन स्ट्राइकर से, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित देखा कि वहां पर गेंद को विकेट कीपर द्वारा फील्ड किया जा चुका है। तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 16 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 16 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। 13 balls left and 21 runs required. So the battle is now continuing here to qualify for the next round of this competition in this prestigious cricket tournament, Friends Trophy 2024. और दोनों बल्लेबाज कुछ बातचीत करने के बाद अपने स्थान पर लौटते हुए, और गेंदबाज इस वक्त गुरराज इस ओवर में अंतिम बार इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार था। इन्हें हाथ ओवर द राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, बल्ले का अंदरूनी किनारा टकराने के बाद गेंद उनके पैरों पर टकराई, और जब तक गेंद शॉर्ट पॉइंट पर फील्ड होती भी बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 17 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट, 4 overs completed and 7 runs came from this over। और पहला बेहतर ओवर कहना पड़ेगा जमन बॉयस कल्लड़ का में इस वक्त हो चुका है, जिसमें 7 रन बन चुके हैं। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन बिना किसी नुकसान के। 2 ओवर का खेल बाकी, 20 रन चाहिए। 20 रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 2 overs। और काफ़ी लंबी बातचीत यहाँ पर चलती हुई कि अगला ओवर किसको दिया जाए, और काफ़ी बातचीत के बाद गेंदबाजी का जिम्मा इस वक्त सौंपा गया है गेंदबाज सुमित के हाथों में, जिन्होंने अपना पहला ओवर काफ़ी बेहतरीन फेंका था। सिर्फ 1 रन उन्होंने प्रदान किए थे, 1 विकेट भी उन्होंने प्राप्त किया था, और दूसरा ओवर अपना यहाँ पर प्रारंभ करते हुए। और इस वक्त लंबे कद के खिलाड़ी सामना करने के लिए तैयार। मैच नंबर 10 अंडर दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट फ्रेंड्स ट्रॉफी 2024 के अंतर्गत यहाँ पर खेला जाता हुआ। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो सुमित इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था। इन्हें ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए सामना करते हुए इस वक्त अजीम, और ओवर की पहले गेंद सुमित गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, विकेट कीपर ने डाइविंग स्टॉप इस वक्त लगाया, गेंद रन आउट का खतरा, लेकिन गेंद बल्लेबाज के पैर पीठ पर इस वक्त टकरा चुकी है। और इस बीच वाइड का इशारा। 1+1 2 runs नाउ एडेड टू द टोटल। अगर 36 रनों के लक्ष्य के अंदर, स्कोर के अंदर अगर रोक कर रखना है यहाँ पर जमन बॉयस का लड़का के बल्लेबाजों को, तो दुर्गा कुंचाड़ी के गेंदबाजों को इस वाइड के डिपार्टमेंट पर इस वक्त अंकुश लगाना होगा। काफ़ी वाइड रन वो अब तक फेंक चुके हैं। और इस बीच सुमित अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज रफीक के लिए 12 गेंदें बाकी हैं, और रन से चाहिए इस वक्त 18। और अगली गेंद लेकर इस वक्त सुमित तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार बैकफुट पर गई, गेंद को खेला इस वक्त सीली मिड ऑफ पर स्वयं सुमित गेंद तक पहुंचे अपनी दाईं ओर, लेकिन 1 रन लेने से बल्लेबाज को नहीं रोक पाए, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। जबकि 5वां ओवर उनकी पारी का प्रगति पर निस्संदेह यहाँ पर बराबर का टक्कर इस वक्त जारी। 17 रन चाहिए, 11 गेंदें बाकी, और सुमित एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज अजीम इस वक्त सामना करने के लिए तैयार सुमित की गेंदों का। और सुमित दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई बाउल्ड आउट, गॉन फॉर अ बिग वन एंड द बॉल पास्ड बिटवीन हिज लेग्स। सो द विकेट फॉलन, अजीम डिपार्ट्स। और लेग कटर गेंद पर स्ट्रोक लगाना चाहता स्टंप्स को कवर कर, लेकिन गेंद बल्लेबाज ने जितना पूर्वानुमान एक्सपेक्टेशन लगाया तो उससे नीचे रहती हुई, देखिए किस तरीके से हुआ था, गेंद दोनों पैरों के बीच से निकलते हुए सीधे मिड लेग स्टंप पर जा टकराते हुए बिल्स डिस्टर्ब होते हुए, और आजिम का विकेट यहाँ पर गिर चुका है। 4था विकेट गिर चुका है 20 रनों के ओवर पर। इट्स 20 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। जमन बॉयज का लड़का आर नाउ लुकिंग इन ट्रबल।
तो नए बल्लेबाज का इस वक्त इंतजार है और नंबर 6 बल्लेबाज जमन बॉयज का लड़का की ओर से इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए 10 गेंदें बाकी हैं और रन से चाहिए 17 और नए बल्लेबाज नंबर 7 की जर्सी पहने हुए इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए काफी जिम्मेदारियों के साथ और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार सुमित की गेंदों का। और सुमित इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर विकेट नए बल्लेबाज के लिए और ये गेंद इस बार उछालना चाहा बैक टू द बॉलर की दिशा में मौका, लेकिन यहाँ पर और इस बार ये विकेट गिर चुका है। शायद वहां पर डायरेक्ट हिट लगा था और यहाँ पर ये बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच नहीं पाए और पहली गेंद पर रनआउट के रूप में गोल्डन डक के रूप में ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है। रनआउट के रूप में बल्लेबाज नजीर पेविलियन वापस लौटते हुए देखिए किस तरीके से गेंदबाज के हाथों में पहुंची थी, विकेटों पर निशाना दागा और उनका निशाना सही बैठा और इस बीच ये विकेट गिर चुका है। 5वां विकेट गिर चुका है। 17 रिक्वायर्ड, 9 balls रिमाइनिंग, द थिंग्स गेटिंग मच टाइटर नाउ फॉर Zaman boys का लड़का and a fantastic piece of bowling performance continuing here from the bowlers of Durga Cricketers Konchadi. तो इस वक्त नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ न्यू बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल और रफीक इस वक्त स्ट्राइक पर वापस आ चुके हैं और कुल मिलाकर 9 गेंदें बाकी, 17 रन चाहिए विजय के लिए। और जहाँ तक सवाल है खुद मुझको इस वक्त मॉनिटर पर इस वक्त दिखाया जा रहा है मेरे साथ जो कि रतीश राज इस वक्त मौजूद है स्कोरर के तौर पर और यहाँ पर गेंदबाजी की ये गेंद इस वक्त गेंद लेग स्टंप से कुछ ज़्यादा बाहर की ओर नहीं निकलती हुई और ऐसा कहना पड़ेगा कमेंटेटर बॉक्स पर बिल्कुल फ्रेंडली माहौल इस वक्त छा चुका है। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त रनों का तो इस गेंद पर रन बल्लेबाज को नहीं मिला। फिर से एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस वक्त ऑफ स्टंप से बाहर खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला इनटू द गैप एज वेल। रफीक ने गेंद जाती हुई कवर पॉइंट सीमा रेखा की और गेंद को बेहतर तरीके से रोकने में सफल, सीमा रेखा के अंदर डाइविंग लगाते हुए बेहतर फील्डिंग वहां पर और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 3 रन प्राप्त करने का। ऑफ द बैक फुट गेंद को खूबसूरती के साथ पंच किया था इस वक्त रफीक ने कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से खाली क्षेत्र चुनते हुए और काफी लंबा दौड़ लगाते हुए गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर और डीप कवर पॉइंट के दरमियान सीमा रेखा के अंदर गेंद को रोकते अपने डाइविंग लगाने के बाद गेंद को ढकेलते फील्डर बल्लेबाज के पास मौका था 3रा रन प्राप्त करने का और 23 रनों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका है। देखिए किस तरीके से गेंद को खेला था ऑफ द बैक फुट, इस बार स्क्वायर ड्राइव इस वक्त खेला था खूबसूरती के साथ रफीक ने और अगली गेंद लेकर तैयार सुमित की गेंद इस बार इनसाइड एज, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, रफीक के लिए खतरा हो सकता है लेकिन ना निशाना इस वक्त चूक चुका है और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 24 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर 7 रन इस ओवर में बने। 7 रन स्कोर्ड फ्रॉम दिस ओवर एंड नाउ लास्ट ओवर रिमेनिंग, 13 रन रिक्वायर्ड, 13 रन की दरकार इस बचे हुए अंतिम ओवर में। Meantime, the next match will be played between Reliance Katipalla versus Jolly Friends Bajal, and I request all the players of these two teams to please get ready for the next match. So 13 runs to get. और इस बीच गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए हमसे दूर वाले छोर से मैच निर्धारित ओवर यहाँ पर शुरू होता हुआ। फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलती हुई और गेंदबाज रोहित अपना दूसरा ओवर शुरू करते हुए पहले ओवर में काफी बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन उन्होंने दिया था। सिर्फ 3 रन उन्होंने प्रदान किए थे, 1 विकेट भी उन्होंने प्राप्त किया था और इस बीच अपनी ओवर की दूसरी ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार सामना करते हुए इस वक्त बल्लेबाज तौफीक और ओवर की पहली गेंद 13 टू गेट फ्रॉम लास्ट ओवर, दैट मींस इन रिमेनिंग 60 ओवर्स। फर्स्ट बॉल पहली गेंद, ये गेंद बेहतर फैंटास्टिक एंड ही लॉस्ट हिज ऑफ स्टंप, extra quick delivery, much straighter line, and at last the ball after beating the batsman bat is stuck to his off stump. Bells are disturbed and Rafiq departs and 1 more wicket fall down. Wicket number 6 down, 24 for 6 and now 13 to get from 5 deliveries. The things getting much tighter now for the batsmen of Zaman Boys Kalladka. तो इस वक्त
24 for the loss of 6 wicket. Number 8 batsman is now coming out to the middle. और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए रोहित नंबर 8 बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और इस वक्त 5 गेंदें बाकी हैं, 13 रन चाहिए विजय के लिए। और निश्चित रूप से इस वक्त तख्ता जरूर भारी लग रहा है दुर्गा क्रिकेटर्स कुंचाडी का, लेकिन मौका जरूर है जमन बॉयज का लड़का के बल्लेबाजों को बाउंस बैक करने का। कम से कम एक चौका या छक्का इस वक्त उन्हें इस मैच में लगभग वापस ला सकता है। दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद इस वक्त ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद को इस वक्त उछालना चाह चूके सही गेंद घोषित, रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। स्कोर बोर्ड इज 24 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। और इस बार तृतीय अंपायर के लिए मांग की गई है कि ये वाइड है या नहीं, इसका परिशीलन यहां पर करने के लिए। और देखते हैं यहां पर तीसरे अंपायर क्या निर्धार देते हैं। So the decision is now still pending and just wait for the third position once again. तो इस वक्त गेंद ऑफ स्टंप पर आई थी, गेंद को कट करना चाहा था और चूंकि विकेट कीपर के हाथों में पहुंची और जहां तक नो वाइड डिक्लेयर्ड, इट्स अ फेयर डिलीवरी। तो इस वक्त एक डॉट गेंद उनके खाते में जुड़ चुका है और स्कोर है इस वक्त 24 रन, 13 टू गेट फ्रॉम रिमाइनिंग 4 डिलीवरीज। और इस बीच गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए रोहित इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव करते मिड ऑफ की दिशा में तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े। एक रन इस बीच मिला जरूर और मिड ऑफ के फील्डर ने थ्रो को स्टंप्स पर फेंकना मुनासिब नहीं समझा और इस बीच एक रन का इजाफा और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर। 25 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट, 12 रन टू गेट फ्रॉम रिमाइनिंग 3 बॉल्स। तो अंपायर ने इशारा किया कि दे आर एक्सीड देयर टाइम लिमिट, उनके निगदित समय समाप्त हो चुका। तो एक फील्डर को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा। तो एक कुछ हद तक इस वक्त ये एडवांटेज इस वक्त साबित हो सकता है यहाँ पर बल्लेबाज रफ़ीक के लिए। और देखते हैं इसका फ़ायदा वो किस तरह यहाँ पर उठाते हैं। तो गेंदबाज रोहित गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट बाएं हाथ के बल्लेबाज रफ़ीक के लिए अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। 3 बॉल्स 12 रन रिक्वायर्ड। और इस बीच रोहित रफ़ीक के लिए अगली गेंद, ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहा, गेंद लगभग गई इस वक्त शॉर्ट स्क्वायर लेग पर। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। हिज गॉट अ बैट ऑन दैट और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 26 रनों पर। 26 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट एंड नाउ just 2 balls remaining. This could be the last chance in front of the batsmen of Zaman Boys का लड़का। Almost 2 sixes required. That means 11 required from last 2 deliveries. और 2 गेंदों में इस वक्त दोनों टीमों का भविष्य यहाँ पर तय हो जाएगा। तो इस बीच 26 रन 6 विकेट के नुकसान पर 2 गेंदें 11 रन चाहिए। और इस बीच गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को उछाला है लॉन्ग सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। और इसके बल्ले से यह छक्का लग चुका है और यह छक्का इस वक्त जमन बॉयज का लड़का के उम्मीदों को बरकरार रख चुका है। अब अंतिम गेंद पर चाहिए चौका टाई के लिए, छक्का विजय के लिए। तो यहां पर स्ट्रेट अवे अब गेंदबाज दबाव में नजर आते हुए, तो यहां पर नजीर के बल्ले से यह छक्का इस वक्त लग चुका है और इस वक्त नजीर के लिए एक इनाम घोषित किया गया है। अगर और एक छक्का इस अंतिम गेंद पर वो लगाते, अपनी टीम को विजय दिलाते, तो 500 रुपए का नगद पुरस्कार
जासीम इनकी ओर से दिया जाएगा। तो इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा जमन बॉयज का लड़का का भविष्य नज़ीर के ऊपर निर्भर रहा है, जबकि दुर्गा कुंचाड़ी का भविष्य यहाँ पर गेंदबाज रोहित के ऊपर तैनात। और अंतिम गेंद, द मैच डिसाइडिंग बॉल कम, द प्रेशर इज नाउ बिल्डिंग अप ऑन बोथ साइड्स। 4-4 टाई, 5-4 विक्ट्री। एंड नाउ हियर वी गो, लास्ट बॉल, इस बार ड्राइव किया, गेंद पहुंची इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर, गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के बाहर, और इस बार चौका घोषित, और इस चौके के साथ द मैच नाउ एंडेड इन अ टाई। 6 एंड अ बाउंड्री। और यहां पर ऐसा कहना पड़ेगा नजीर इन दोनों गेंदों में यहां पर हीरो बनते हुए, ही बिकम द हीरो इन द लास्ट 2 डिलीवरीज। अब देखना यह है कि विकेटों का कंपैरिजन यहां पर देखा जाएगा। तो देखते हैं यहां पर विकेट, तो विकेट कंपैरिजन यह कहता है कि दुर्गा कुंचाड़ी ने खोए थे 8 विकेट, जबकि जमन बॉयज का लड़का ने खोए 6 विकेट। एंड बिकॉज ऑफ दैट जमन बॉयज का लड़का emerged winners in comparison of wickets, and the tide is now completely turned in the last 2 deliveries। और दुर्गा कुंचाड़ी अंतिम क्षण तक मैच उनके हाथ में था, और अंतिम 2 गेंदों में जिस तरीके की बल्लेबाजी नजीर ने की, छक्के और चौके, छक्का और चौका उन्होंने झड़ा, और उन 2 बेहतरीन स्ट्रोक्स के बदौलत यहाँ पर जमन बॉयज का लड़का इस मैच को जीत चुका। हालांकि मैच टाई में समाप्त हुआ था, लेकिन विकेटों के आधार पर इस वक्त जमन बॉयज का लड़का इस मैच में विजयी घोषित कर चुका है। दुर्गा कुंचाड़ी ने 8 विकेट खोए थे, जबकि जमन बॉयज का लड़का ने खोए हैं 6 विकेट। सो अनफॉर्चुनेटली फॉर दुर्गा कुंचाड़ी, दे लॉस्ट द मैच by comparison of wickets, and